unique in the next 5 years? And secondly, which is your competitor in the market? I think on funding, I mentioned at this moment we have planned an outlay of upwards of 500 crores. Um, and in terms of competition, we feel there are a lot of players who've established themselves in the last decade or so. Our attempt is to build a differentiated proposition for patients that when they come to us, they experience a difference in the quality of care they get and the service experience they get. Um, so, kahin na kahin, our attempt is to create that differentiation and a different brand. सर आपका बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर में तीन तरह के पेशेंट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा, कैसा ट्रीटमेंट करेंगे आप? जैसे एक आपका हार्ट अटैक हुआ, सेकंड पैरालिसिस और थर्ड आपका कैंसर। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ के अंदर कैंसर इन यंग गर्ल्स एंड बॉयज वी आर ट्रीटिंग। जो छोटी बच्चियां हैं या फिर एनीवन लेस देन 36 years of age, both men and women, we can help preserving their fertility। हमारा एक फर्टिलिटी का यूनिट है और हम सिर्फ फर्टिलिटी पेशेंट्स को ही देखते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम हो रही उन्हीं को देखते हैं हम। सो हार्ट डिजीज एंड अदर थिंग्स वी डोंट एक्चुअली cater to, but anyone having cancer definitely we'll be able to help। We've got all the advanced technologies, equipment and doctors who can manage young boys and girls who have got cancer, and we'll be starting a pioneering program in the country which is called ovarian cortex, and same for the men। यंग बॉयज इन केस से कम टू स्टेज कैंसर, जिन्हें कैंसर है, उनका भी हम टेस्टिस का टिश्यू निकाल के प्रिजर्व कर सकते हैं और बाद में उनके स्पर्म्स को मैच्योर करके वो माता के साथ हो सकते हैं। दैट्स अ पायनियरिंग वर्क वी प्रॉमिस टू दी। Sir, actually in India there is a big problem that people are not aware about fertility and IVF. So as you are working with fertility and IVF, so I want to know about that what activity Birla is running that people be aware, and also in small cities and rural area. So, इसमें our efforts are on 2 or 3 fronts. First, there is a heavy need to disseminate information and make topics around fertility mainstream. आप छोटे शहरों में जाएं तो अभी भी कुछ ना कुछ सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है इससे। बहुत सारे फैमिलीज के डिसइंटीग्रेशन का कारण ये बनता है। So what we are doing is we are organizing camps and outreach programs in these smaller locations where our doctors go. It is not, these are trained, qualified professionals who are going and creating these outreach and disseminating this information. That's number 1. Number 2, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ हमने OPD कंसल्टेशन को फ्री रखा है ताकि लोगों के मन में वो बाधा ना रहे कि हम कई बार इकोनॉमिक रीजन से they don't want to come. What we are also doing is we have opened up facility for teleconsultation ताकि आपको ऐसा भी नहीं है कि ट्रैवल करना है, आप अपने घर की सहूलियत से भी डॉक्टरों से बात करके फर्टिलिटी के बारे में जनरली और अपनी प्रॉब्लम के बारे में स्पेसिफिकली समझ सकते हैं। एंड तीसरा बड़ा फैक्टर इसमें रहेगा हमारे सेंटर्स का प्लान। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ क्रिएटिंग सेंटर्स ओनली इन बिग सिटीज एंड ओनली 10-15 of them. When we are talking of 100 centers, this will go to the hinterlands, to the smallest towns. और जब आपके घर के पास एक्सेस होता है तो शायद वो कन्वीनियंस आपको डॉक्टर के पास लेके जाती है। सो ये तीसरा चीज़ है। और चौथा कहीं ना कहीं हमारी प्राइसिंग को लेके भी है, जहाँ पे our pricing promise is that you get world class care at prices which are affordable, जिसके कारण more and more people will opt for this option. One question. Yeah. जी. Sir, as a Birla is a big group, so I think so government is not working to aware about this. So as a
big name and as a big group, you should approach to government to aware people about fertility and IVF. जी बिल्कुल नहीं, it's a great suggestion. In any case, healthcare is a topic जहाँ पे impact ज़्यादा create किया जा सकता है अगर हम partnership में काम करें, और government infrastructure in rural areas, smaller towns is commendable, and we have to work in partnership. So it's a great suggestion. It's something that is on our minds as well. Thank you. Doctor, sir, male infertility is the common problem today. So, how is to evaluate and diagnose the problem in the birdla fertility? हाँ, एक्चुअली आप बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और ये सवाल बहुत क्लोज है हमारे हार्ट के बिरला फर्टिलिटी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन। हम कभी भी मैन के साथ देखा गया है, हम एक स्त्री के साथ भी ओनली कम्युनिकेट विद द वुमेन, वी डोंट टॉक टू द मैन। सो वी आर हैविंग our training is such that we always spend time with the men, talk to him, and what we have found is that 6 out of 10 men, or even 7 sometimes each, we have some problem. सबसे पहला होता है बात करना, once you talk to them, you're able to be confident with, क्योंकि the way our country has been made, the way we're educated, the women are at the forefront when we talk about fertility problems. The men is hiding behind. So जब हम बात करेंगे, बात करने से भी comfortable that men don't have the problem. And then we have to make it completely confidential. We have to give them a complete assurance that whatever we talk occurs in a small room, and we have to train ourselves when we talk to the men. Doing an IVF or an IUI एक बहुत ही सिंपल सी एक क्रिया है, वो टेक्नोलॉजी है. But talking to the men, so बिरला फर्टिलिटी एंड IVF stands for communication. बात करना है, जब बात करेंगे या डॉक्टर्स को ट्रेन करना है, so we are training our doctors as per the latest guidelines which are available from Europe and USA. There are some guidelines available to evaluate a man, so that is part of our curriculum. And all our doctors, we are running an online OPDs, offline OPDs. We treat men in complete confidentiality. वो आते हैं बात करेंगे तो वो बात करेंगे, अगर छोड़ देंगे तो वो बात नहीं करेंगे। बट बात करने के बाद क्या करना है, that is the most important thing. अब क्या करेंगे? So for that we have to need training, we have to have checklists, we have to have medicines, surgeries, we have to have a team of andrologists, then equipment, and that's it. I mean, we have everything here. Before we have launched this program, so it's a one-stop shop for any men who is having any problem in the country. We have got, as I said, we've got a holistic team: counselors, dietitians, nutritionists, andrologists, urologists. All we work together as a team. जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? वही जवाब मैं देना चाहूँगा। इसका उद्देश्य था जागरूकता क्रिएट करना, और ये सवाल बार बार उठ के आया है। हमने बार बार बात करी है कि हम आउटरीच कैसे करें। IVF या ट्रीटिंग द पीपल हु हैव गॉट फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स इज ए प्रोसीजर, इज ए प्रोसेस, बट हमें इसके आगे बढ़ना है। कितने लोग हमारे तक आ सकते हैं, उनका नंबर सीमित है, एक दायरा, बहुत ही सीमित दायरा में लोग हमारे पास में आते हैं। तो वी हैव टू रीच द पीपल ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाय टेकिंग आउट, by educating them medically, by various sources we have, by outreach programs, by camps, by social media. We have to tell women, all the women in the country and the world, all the men who are having this problem, that we are with them. Sir, उद्देश्य आपके थ्रू हमारा ये उद्देश्य है कि आप हमारी जो बातें हैं और जो हमारी गलत धारणाएं जो भी हमने जिनके बारे में हमने बात करी, आप इसका निवारण कर सकेंगे और हमारी पूरी बातों को आप देश के कोने कोने में फैला सकेंगे। सर, एज आप डॉक्टर भी हैं और एज आर्मी मैन भी रहे आ रहा, तो एज आर्मी मैन ऐसे लोगों को क्या सख्त संदेश देना चाहेंगे जो केवल औरत को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार, बांझपन के लिए जिम्मेदार मानते हैं, और यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि औरत सुसाइड कर लेती है? ये ऐसे केसेस हमने सुने हैं और शायद देखे भी हैं। ये बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है, और यही कारण है कि मैंने आर्मी में होते हुए इनफर्टिलिटी का क्षेत्र चुना, और आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। बट इसका जवाब एक ही है कि हमें जागरूकता क्रिएट करनी है, और यही आपने सवाल बार बार से पूछा है कि हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस।
कुछ आपके दिल में कुछ चोट लगी है तभी अभी सवाल को बार बार पूछ रहे हैं, अंदर मैं समझ सकता हूँ, बट आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड टेल द वर्ल्ड दैट वुमेन आर आर इक्वल पार्टनर्स। स्त्रियाँ हमारे साथ में चलनी चाहिए, सर- दे शुड बी एम्पावर्ड। और हमें बताना है कि बच्चा ना होने का कारण, बांझपन का कारण एक मर्द भी हो सकता है। ये एक जागरूकता हम क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके मीडिया पर। सर, जिस प्रकार से मैंने लास्ट में भी ये क्वेश्चन था कि लोग जो है इस वजह से नहीं इसका इलाज कराना चाहते क्योंकि अनॉर्मल बच्चे होंगे, एबनॉर्मल, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों के क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे बहुत इसके लिए? सिंपल सा जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि इस समय दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म ले चुके हैं जिनका IVF हुआ था, और जो हम महसूस करते हैं कि बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है किसी कारण की, शारीरिक बनावटी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, जो एक बच्चे नॉर्मली पैदा होते हैं, कंसीव करते हैं, जो 19% है, नियरली वही परसेंटेज IVF के बेबीज के अंदर होता है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरा देश सुन रहा है, और क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि IVF हर बीमारी का, हर प्रॉब्लम का इलाज नहीं है। IVF is not the answer for all the treatments when the couple doesn't have fertility. There are multiple methods. So first of all, we have to give everybody a holistic care. That's the basic motto of Birla Fertility and IVF. IVF is एक अंश है, और IVF is not the opening treatment we give to the people. IVF is a very safe procedure, and I think we should reach the whole world, the whole country, and tell them that प्लीज़ कम फॉरवर्ड। इसके अंदर जो पहले धारणाएं हैं कि चुप चुप के सफ़र करना और आगे नहीं आना, आई थिंक वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। दैट कैन ओनली हैपन आफ्टर द मेन एंड वुमेन आर एजुकेटेड। थैंक यू सो। सर, आज जो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? दो उद्देश्य हैं। एक, आपके माध्यम से ये जागरूकता फैलाना कि फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आम बात है, और जहाँ पे भी दिक्कत आए प्लीज़ हेल्प सीक आउट करिए। और दूसरा उद्देश्य है कि हम एक भरोसेमंद जगह है जहाँ पे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। सो हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे कि बिरला फर्टिलिटी अब आपके दिल्ली NCR में आपके घर के पास है, आप प्लीज़ विजिट करिए। सर, और हॉस्पिटल्स भी तो हैं, वहाँ ना जाने के बजाय यहाँ पे क्यों लोग आए? ऐसा क्या है इसमें? मैं तो विशेष क्या है? चंद शब्दों में कहूँगा, हम वादा करते हैं श्रेष्ठ सेवा का और सर्वश्रेष्ठ परिणाम का। आप हमारे पास एक ज़रूरत के लिए आते हैं, और हम बेहतर साइंस, बेहतर एक्सपर्ट्स, बेहतर लैब्स के माध्यम से आपको बेटर आउटकम्स देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। और इस सब में आप पाएंगे कि हम पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और हम पूरी सेंसिटिविटी के साथ आपको इस जर्नी में पार्टनर करेंगे। सर, बात की जाए प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे कि आपके ही हैं, तो लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कहीं ज्यादा हमसे जो है पैसे की डिमांड ना हो जाए, उनका बजट नहीं होता है, इस वजह से भी कई लोग नहीं आ पाते हैं। तो क्या बजट अनुकूल रहेगा अगर हम निम्न तबके का व्यक्ति देखें तो? जी, पहली चीज, आप बजट की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं वापस दोहराऊंगा क्वालिटी के बारे में, क्योंकि इलाज बेहतरीन होना चाहिए और आपके परिणाम अच्छे आने चाहिए। इस सब को रखते हुए भी हमारे प्राइसिंग बहुत अफोर्डेबल है, और सबसे बड़ी चीज़ IVF में देखी गई है कि पैकेज एक दिया जाता है और उसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। हमारा स्पष्ट वादा है कि हमारे पैकेजेस में कोई हिडन चार्जेस नहीं है। सो आवर प्राइसिंग इज अफोर्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। देश की जनता आपको देख और सुन रही है सर, तो क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज की दुनिया में आम बात है, और उसका समाधान आसान है। एक भरोसेमंद डॉक्टर, भरोसेमंद ब्रांड के साथ आप उसका इलाज समय रहते कराइए और अच्छे परिणाम पाइए। हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत थैंक यू।